طلاق دینا ہے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدثر اللہ العالی کی انڈونیشیا آمد۔ بندہ اچے میں موجود حضرت سیدنا حبیب ابو بکر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر حاضری، دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ خلیفہ امیر اہل سنت نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور اراکین شورا کا سفر عراق۔ بغداد معلی میں موجود حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری۔ حضور غوث پاک کے مزار شریف سے متصل صحن میں نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ خلیفہ امیر اہل سنت، اراکین شورا، علماء کرام اور مختلف ممالک کے عاشقان رسول کی شرکت۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ نگران شورا مفتی محمد قاسم اتاری اور رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 29 سپتمبر 2025 کو مختلف ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا۔ ٹیلی تھون کے حوالے سے تجاویز پر گفتگو ہوئی۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو اہداف بھی دیے۔ شاہپور لاہور پنجاب پاکستان میں 19 سپتمبر 2025 کو سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ شرکاء کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ انقرہ ترکیہ میں موجود حضرت سیدنا بیرم ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا و دیگر مبلغین کی حاضری۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور اداروں کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب، اور سب سے پہلے سنتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ یہ ارشاد فرما دے کہ جس طرح ابدال اولیاء کرام میں کئی طرح کے مراتب والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو کیا حضور غوث پاک کے پہلے بھی کوئی غوث تھے یا ان کے بعد کوئی ہونے والے ہیں؟ سب سے پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم کا خطاب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور اس کے بعد جو غوث اعظم ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ امام حسن مجتبی ان کے ماتحت ہو گئے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے وہ تو صحابی نبی تھے، ان کا تو ہم پلہ ساری دنیا کے اولیاء کرام مل کر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابی نبی، نواسہ رسول، ڈائریکٹ نواسہ رسول ہے نا۔ تو اچھا، اب شیخ عبد القادر جیلانی کی بادشاہت ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ پھر آئیں گے امام مہدی، ابھی نہیں آئے، یہ آئیں گے۔ امام مہدی ہوں گے غوث اعظم۔ غوث اور ہے اور غوث اعظم اور ہے، کئی اولیاء کرام بھی غوث ہوئے ہیں، تو جبھی تو غوث پاک کا لقب ہے غوث الاغواث۔ اغواث غوث کی جمع ہے، غوثوں کے بھی غوث۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی نبی بہت سارے ہوئے، لیکن ہمارے آقا جو ہے نبی الانبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار ہے نا۔ تو اس طرح مطلب غوث الاغواث، غوثوں کے بھی غوث۔ مدنی چینل کے ناظرین، فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کی 6 اکتوبر 2025 کو انڈونیشیا آمد ہو چکی۔ بندہ آچے میں حضرت سیدنا حبیب ابو بکر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر خلیفہ امیر اہل سنت نے حاضری دی اور دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا، جبکہ مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید
رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی کی انڈونیشیا آمد ہو چکی ہے۔ بنداچی شہر کی مسجد رائے بیت الرحمن میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری اور نگران انڈونیشیا مشاورت و دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری ہوئی، جہاں نماز مغرب ادا کی گئی اور پھر بندہ آچے میں ہی موجود حضرت سیدنا حبیب ابو بکر بن حسین بن فقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر خلیفہ امیر اہل سنت نے رکن شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی اور صاحب مزار و امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا گیا۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت نے صاحب مزار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، یہاں پہ ابھی ہم ایک مزار شریف پہ حاضر ہوئے ہیں، یہ سید صاحب ہیں اور تقریباً 400 سال قبل جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو وہ یمن سے یہاں تشریف لائے تھے، تو یہاں جو ہے وہ زائرین آتے ہیں، یہاں حاضری دیتے ہیں، یا فاتحہ خوانی ہوتی ہے یا نعت خوانی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور یہاں ساتھ میں مسجد بھی ہے، اور زائرین آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر فیض لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کا فیضان جو وہ پوری دنیا میں ہے، اور یہ تو ویسے بھی سید زادے ہیں کہ ان کا نام ہے حبیب ابو بکر بن حسین۔ اللہ ہمیں ان کے برکات سے مالا مال فرمائے، اللہ کریم ہماری یہاں کی حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنائے اور برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنائے۔ ادھر مزار شریف سے ہی متصل مسجد میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ نگران انڈونیشیا مشاورت نے خلیفہ امیر اہل سنت کی گفتگو کا انڈونیشین زبان میں خلاصہ بھی بتایا۔ اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا کروائی اور اس کے بعد موجود عاشقان رسول نے خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ بغداد معلی عراق میں موجود حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت پائی۔ دوسرے موقع پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے متصل صحن میں 2 اکتوبر 2025 کو نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے غوث پاک کی عظمت و شان کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں بغداد معلی عراق میں موجود پیران پیر روشن زمین حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی۔ دوسرے موقع پر 2 اکتوبر 2025 کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے متصل صحن میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ اس سنت بھرے بیان میں مختلف ممالک سے آئے زائرین و عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی، مختلف ممالک کے علماء کرام اور اراکین شورا بھی موجود تھے۔ دوران بیان نگران شورا نے کلام رضا سے منقبت غوث پاک کے اشعار پڑھتے ہوئے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کی اور عقیدت و محبت بھرے انداز میں ان کی عظمت و شان پر مشتمل واقعات بھی بتائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں فیضان آن لائن اکیڈمی کا 24، 25 اور 26 سپتمبر 2025 کو 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ العالی، رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے اور شرکاء اجتماع کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 24، 25، 26 سپتمبر 2025 کو 3 دن کا سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے اساتذہ کرام، شعبہ کے اسلامی بھائیوں اور نگران مجلس پاکستان نے شرکت کی۔ اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اسلامی بھائیوں میں سنت بھرا بیان کیا اور ان کی تنظیمی رہنمائی کی۔ اجتماع میں مفتی محمد قاسم اتاری مدظ ذلہ العالی نے بھی سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کی شرعی رہنمائی کی اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری نے بھی سنت بھرا بیان کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ اجتماع کی اختتامی نشست میں اسلامی بھائیوں کے لیے ایک ریسکیو سیشن بھی رکھا گیا، جس میں اسلامی بھائیوں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے رہنمائی دی گئی۔ 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے اختتام پر فیضان آن لائن اکیڈمی میں اچھی کارکردگی دینے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔
फैजान मदीना फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में 29 सितंबर 2025 को मुख्तलिफ जिम्मेदारान का मदनी मशवरा हुआ, जिसमें टेलीथोन की हवाले से तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने इस्लामी भाइयों की तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई करते हुए अहदाफ भी दिए। पंजाब पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में कायम मदनी मरकज फैजान मदीना में 19 सितंबर 2025 को टेलीथॉन के हवाले से अरकान शूरा और मुख्तलिफ शोबाजात के निगरान मजालिस पाकिस्तान और सूबाई जिम्मेदारान का ऑनलाइन मदनी मशवरा हुआ। मदनी मशवरे में रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी, रुकन शूरा हाजी सैयद इब्राहिम अत्तारी, निगरान मजलिस पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जामियातुल मदीना बॉयज, जामियातुल मदीना गर्ल्स, मदरसतुल मदीना बॉयज, मदरसतुल मदीना गर्ल्स, मदरसतुल मदीना बालिगान, शोबा इमाम मसाजिद, शोबा फैजान मदीना और शोबा मुआवनत बराए इस्लामी बहने के निगरान मजालिस पाकिस्तान और सूबाई जिम्मेदारान ने शिरकत की। मदनी मशवरे में टेलीथॉन 2025 के हवाले से तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। रुकन शूरा और निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने इस्लामी भाइयों की तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई करते हुए इन्हें टेलीथॉन के हवाले से अहदाफ दिए और मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया। जामियातुल मदीना गर्ल्स बॉयज, मदरसतुल मदीना गर्ल्स बॉयज, फैजान मदीना इमाम मसाजिद, मदरसतुल मदीना बालिगान और मुआवनत बराए इस्लामी बहनें, इनके ज़िम्मेदारान, फाइनेंस के सूबाई ज़िम्मेदारान का हमने अभी ऑनलाइन मशवरा किया है। टेलीथॉन हमने करना है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर 2025 तक और दावत इस्लामी के जुमला दीनी कामों के लिए करना है, ताकि हमारे दीन के काम जो हैं ये जारी रहें। अल्लाह करीम हमें देने की भी तौफीक अता फरमाए, औरों को कहने की और लेने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का दिया हुआ है, उसकी राह में खर्च करेंगे, रब्बे करीम हमें दुनिया में अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। लाहौर पंजाब पाकिस्तान के इलाके शाहपुर कांजरा में 19 सितंबर 2025 को दावत इस्लामी के तहत सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने सुन्नतें क्या हैं के मौजू पर अजीम शान सुन्नतों भरा बयान किया और शुरकाओं को प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया। पंजाब के शहर लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में 19 सितंबर 2025 को सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, मकामी आशिकान रसूल और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने सुन्नतें क्या हैं के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और हाज़रीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का ज़हन दिया। रुकन शूरा ने शुरका को इल्म दीन सीखने, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करने, मदनी मुज़ाकरा देखने और काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी नीयतों का इज़हार भी किया। रुकन शूरा हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने दुआ करवाई, आखिर में सलातो सलाम भी पढ़ा गया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी पंजाब पाकिस्तान में शोबे तालीम के तहत 22 सितंबर 2025 को इज्तिमाई मीलाद हुआ, जिसमें रुकन शूरा अब्दुल वहाब अत्तारी ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान किया और शुरका को सुन्नतों पर अमल करने और इल्म दीन हासिल करने का ज़हन भी दिया। फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान के सरगोदा रोड पर कायम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा तालीम के तहत 22 सितंबर 2025 को इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकन शूरा अब्दुल वहाब अत्तारी ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान किया और शुरका को भी सुन्नतों पर अमल करने, दीनी तालीम हासिल करने, नेक अमाल करने, नमाज की पाबंदी करने की तरगीब दिलाई। आखिर में सलातो सलाम पढ़ा गया। रुकन शूरा ने दुआ भी करवाई। सराय आलमगीर पंजाब पाकिस्तान में 19 सितंबर 2025 को इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी ने सुन्नतों भरा बयान किया। शुरका को नेकी की दावत पेश की गई और इल्म दीन हासिल करने का ज़हन भी दिया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत की मुनासिबत से 19 सितंबर 2025 को सराय आलमगीर पंजाब पाकिस्तान में इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, मकामी आशिकान रसूल और मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी ने सुन्नतों भरा बयान किया और शुरका को भी सुन्नतों पर अमल करने, इल्म दीन सीखने, नमाज की पाबंदी करने, हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करने और काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई। रुकन शुरा हाजी असद अत्तारी मदनी ने दुआ भी करवाई, जबकि आखिर में सलातो सलाम भी पढ़ा गया।
मस्जिद फैजान मौला अली सिंध सेक्रेटेरिएट कराची पाकिस्तान में 22 सितंबर 2025 शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन शुरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया और शुरका को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ज़हन भी दिया। दावत इस्लामी के शुबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान, स्टाफ और शोबे के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक और कलाम से हुआ। रुकन शुरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने शुरका को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने, इल्म दीन सीखने, नमाज की पाबंदी करने, हर हाल में अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहने का ज़हन भी दिया। रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई, जबकि आखिर में सलातो सलाम भी पढ़ा गया। महफिल नात में शरीक आशिकान रसूल ने अपनी अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबी अल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जो दावत इस्लामी यहाँ काम कर रही है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम जितने भी दावत इस्लामी के मेरे भाई हैं, हर जगह जो जश्न करते हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आका का जो जश्न होता है, मैं ये कहूँगा कि हर जगह आका का नाम होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये जश्न ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं, तुर्किया से जहां माह अगस्त 2025 के दौरान अंकारा में मौजूद हजरत सैयदना बैरम वली रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार शरीफ पर रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी ने दीगर मुबल्लिगीन के हमरा हाजिरी दी। रुकन शुरा ने अहदेदारान ऑफिशियल से मुलाकात की और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही खिदमात के हवाले से बताया। मजीद तफसीलात नुमान अत्तारी की इस रिपोर्ट में। तुर्किया के शहर अंकारा में मौजूद हजरत सैयदना बैरम वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी ने दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के हमरा हाजिरी की सआदत पाई और साहिब मज़ार और दीगर के इसाले सवाब के लिए दुआ फातिहा खानी का सिलसिला किया गया। उधर अंकारा में ही अलग अलग मौके पर रईस इत्तेहाद जामिअतुल आलमिया प्रोफेसर बैराम अल्तन, शेख अली अनकरवी, दियानत आइमा व मदारिस डिपार्टमेंट के मुफत्तिश मुशर्रफ साहब और अशफा दरनेक के जहांगीर साहब से इनके ऑफिस में रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी मदनी की दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के हमरा मुलाकात के सिलसिले हुए, जिस दौरान इन्हें तुर्किया समेत आलमी सतह पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी गई और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर ओहदेदारान ने खिदमत दावत इस्लामी को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआओं से नवाजते हुए दावत इस्लामी के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते रहिए और अजर व सवाब पाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन को खबर देते हैं बांग्लादेश से, जहां चिटागोंग डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल के दरमियान होने वाले मीटअप के दौरान अराकीन शुरा हाजी सैयद लुकमान अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने दीन मतीन की खिदमत और दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का ज़हन दिया। मज़ीद तफसील अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की डिवीजन चिटागोंग के शहर चंदोनाइश, मेजरघाट, आगराबाद समेत दीगर इलाकों में अलग अलग मौके पर आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि अराकीन शुरा हाजी सैयद लुकमान अत्तारी और हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने नेकी की दावत देते हुए दीन मतीन की खिदमत और इशाअत के लिए दावत इस्लामी का साथ देने और शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना के तहत मुख्तलिफ मकामात पर फैजान मीलाद समेत दीगर मसाजिद और मदनी मराकिज की तामीरात करने और इसके लिए भरपूर कोशिशें करने का ज़हन दिया। नीज इस्लामी भाइयों को अपने अपने शोबे में नेकी की दावत आम करने की तरगीब दिलाते हुए दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने और नेकियों भरी जिंदगी गुजारने का ज़हन भी दिया, जिस पर शोरका इस्लामी भाइयों ने नेकियों भरी जिंदगी गुजारते हुए नेकी की दावत आम करने समेत फैजान मीलाद, मसाजिद और मदनी मराकिज की तामीरात करने और इसके लिए कोशिशें करने की अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया। और अब अपने नाज़रीन को खबर देते हैं अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत 3 अक्टूबर 2025 को होने वाले इज्तिमाअत गौसिया के हवाले से, जिसमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के सीरत व किरदार व अज़मत व शान के मौज़ूआत पर सुन्नत व भरे बयानात किए। मजीद उमैर अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाज़रीन, अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क की सिटी ब्रुकलिन, टेक्सास स्टेट की सिटी ह्यूस्टन, जॉर्जिया स्टेट की सिटी एटलांटा, इलिनॉय स्टेट की सिटी शिकागो और कैलिफोर्निया स्टेट
کی سٹی ریور سائڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مراکز فیضان مدینہ میں 11ویں شریف کی مناسبت سے اجتماعات غوثیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت و شان اور سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس ضمن میں شرکاء عاشقان رسول کو دین متین کی خدمت اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوران پروگرام کلام کے ساتھ ساتھ منقبت غوث پاک بھی پڑھی گئیں۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت برے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بروز بدھ 24 سپتمبر 2025 کو غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کی شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے مقامی بچوں میں مختلف اشیاء تقسیم کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ غزہ فلسطین میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کی خدمات کی بدولت خیر خواہی امت میں پیش ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے وقتاً فوقتاً کھانے و پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم جاری و ساری رہتی ہے۔ اسی مناسبت سے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول اور ان کے بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے 24 سپتمبر بروز بدھ 2025 کو بچوں کی مرغوب غذا بنانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر نحن فريق FGRF نقوم بتوزيع الحلوى على الأطفال في خان يونس جنوب قطاع غزة. نشكر المتبرعين ومؤسسة FGRF في بريطانيا على الدعم المتواصل للنازحين والعائلات المحتاجة، جزاهم الله خير الجزاء۔ اپنے ناظرین کو بتائیں 23 سپتمبر 2025 کو حیدرآباد سندھ پاکستان کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت سیشن کا انعقاد کیا گیا، جبکہ 23 سپتمبر 2025 کو حیدرآباد سندھ میں ہی ایک نجی بینک میں پروفیشنلز فورم کے تحت میٹ اپ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کی الیکٹرانکس مارکیٹ کے ایسوسی کے دفتر میں شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 23 ستمبر 2025 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں آفس کے عہدیداران، الیکٹرانکس مارکیٹ کے دکانداروں اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ نگران مجلس پاکستان پروفیشنلز فورم نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت کرنے، نماز کی پابندی کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ہی قائم ایک نجی بینک میں پروفیشنلز فورم کے تحت 23 ستمبر 2025 کو میٹ اپ ہوا، جس میں ریجنل ہیڈ سمیت بینک سیکٹر سے وابستہ مینیجرز اور پروفیشنلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ نگران مجلس پاکستان پروفیشنلز فورم نے زندگی کیسے گزارنے کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں دعا بھی کروائی گئی۔ جڑاوالا پنجاب پاکستان میں قائم بار ایسوسی ایشن میں شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے تحت 24 سپتمبر 2025 کو ایک محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران فیصل آباد ڈویژن مشاورت نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے تحت 24 ستمبر 2025 کو پنجاب پاکستان کے شہر جڑاوالا میں قائم بار ایسوسی ایشن میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان افضال ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ سیکریٹری فضل عباس بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سمیت دیگر وکلاء نے بھی شرکت کی۔ نگران ڈویژن مشاورت فیصل آباد نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ نگران فیصل آباد ڈویژن مشاورت نے دعا کروائی، آخر میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں ملتان پنجاب
पंजाब पाकिस्तान में कायम मदरसतुल मदीना इशाअतुल इस्लाम में 25 सितंबर 2025 से 7 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हुआ, जिसमें इस्लामी भाइयों की तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई की गई और उन्हें दावत इस्लामी के दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब भी दिलाई। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान के इलाके मुनीराबाद में कायम मदरसतुल मदीना इशाअतुल इस्लाम बॉयज में 25 सितंबर 2025 से 7 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हुआ, जिसमें किरात कोर्स मुकम्मल करने वाले इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। कोर्स में तलबा किराम को अपनी किरात को मजीद बेहतर बनाने की तरगीब दिलाई गई और तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई भी की गई। इस मौके पर ये भी वाज़ेह किया गया कि मदरसतुल मदीना बॉयज के तहत फराइज सर अंजाम देने वाले इस्लामी भाइयों को अपनी अखलाकी और दीनी तरबियत पर भी खास तवज्जो देना जरूरी है, ताकि वो न सिर्फ बच्चों को कुरान और सुन्नत के इल्म से आरास्ता करें, बल्कि अपनी अमली जिंदगी से भी बच्चों के लिए मिसाली नमूना बन सकें। कोर्स के दौरान कुरान मजीद को याद करने, मंजिल को मजबूत करने और बच्चों को कम अरसे में हिफ्ज़े कुरान की जानिब रागिब करने के तरीके कार पर भी रहनुमाई फराहम की गई। कोर्स में शरीक इस्लामी भाइयों ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अखलाकी लिहाज से उनको ये तरबियत दी जाएगी। जो बच्चा सबक याद नहीं कर सकता उसको प्यार के साथ तरबियत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह सिखाया गया कि बच्चे किस तरह कम अरसे में कुरान पाक हिफज कर सकते हैं। 12 दिनी काम जो हमने सीखे उन पर भी घर जाकर हमने किस तरह अमल करना, बच्चों से किस तरह अमल करवाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कि हमें दिन रात जो हमने ये पढ़ा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस कोर्स के अंदर इनकी तरबियत का सिलसिला किया गया है कि एक अच्छे अंदाज से कमज़ोर बच्चों को कैसे लेकर चलना है, बच्चों की जाकर अखलाकी तरबियत कैसे करनी है, मजीद दावत इस्लामी के तरीक़ाकार के मुताबिक 12 दिनी काम बच्चों के अंदर निफाज कैसे करना है। अल्लाह की रहमत से इस पर भी इनकी तरबियत की गई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको बताते चले 9 अक्टूबर बरोज जुमेरात को दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 8 बजे टेलीकास्ट की जाएंगी, जबकि 10 अक्टूबर बरोज जुमा से दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 8:15 पर टेलीकास्ट की जाएंगी। मदनी खबरों का इख्तिताम यही करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाजरीन, आज 8 अक्टूबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इनका पैगाम खबर है ये आम। ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है। वो दौर तो शायद अब भी होगा कहीं ना कहीं। हमने तो पहले कैटरिंग का नाम नहीं सुना था। पहले वो देखें गलियों में पकती थी। पकाने वाला क्या करता था, वो जैसे घी के बड़े बड़े डब्बे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उसमें इनके वो होता था हैंडल, लगवाते होंगे हैंडल, बिकता तो नहीं हो इस तरह। तो वो जैसे से पानी डालना, ये करना, फिर जब देख पक जाए ना यूं करके डाल के भर लेगा बच्चों के लिए। जिसने पकवाई है उसका तो बेचारे का बेड़ा पार हो जाए। जो लेते मैं देखा जो बोलता यूं करके, अब कई देगे होती होंगी तो उसमें से बता एक ये भर लेते थे। अब हो सकता है इजाजत लेते हो, अभी इजाजत भी एक सवाल ही है। मुरब्बत में का बेचारा मना करेगा, और सर वो अपना जो पकाया किया वो तो उसकी उजरत अपनी जगह पर होती है। तो ये गलत तरीका है। बल्कि इस तरह लेकर कर बोलना कि मैं ये ले लूं, ये तरीका भी गलत है। कि वो देगा नागवारी के आलम में ही इजाजत। तो जब करीना वाज़े हो जाएगा कि ये इसको नागवार गुजर रहा है, तो फिर ये मतलब यानी कि ममनू हो जाएगा ये लेना, और डाल दे। और निकालने से पहले भी ना बोलेगा मैं निकाल लूं, ये बिला वजह सवाल है ये। तो जो शरीयत मतलब कि अगर इस ऐसा मफलूकुल हाल गरीब मिस्किन आदमी है जिसको शरीयत ने इजाजत दी है सवाल करने की, वो तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये कैटरिंग वाले भी जो निकाल लेते हैं, खिलाते हैं, एक दाना भी खाने की इजाजत नहीं है। जो मतलब तय हो गया है कि भाई ये इनकी पक रही है इतने की, सब पैसों में कमी थोड़ी करते हैं। पूरा पूरा लेंगे, पूरा पूरा दे, तो ये नहीं ले सकते। गुनाहगार होंगे लेंगे तो। अब बाद ये होता है सामने सामने निकालते होंगे, वो ये समझो सामने लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो डाकू भी तो सामने ही तो लेता है, पीछे से तो डाकू बोलते हैं इसको, ये लूटता है। चोर छुप के लेता है, तो चोर होता है जो चोर बोलते सीखोगी, छुप कर छुपा कर वो ले लेगा। डाकू होगा देता है क्या नहीं, मोबाइल निकाल। तो सामने सामने लेने से जायज थोड़ी हो जाएगा। तो इस तरह उसके सामने निकालें, उसका खून तो जल रहा है बेचारा। वो जो देखकर वो मुरब्बत में बोल नहीं पा रहा, ये निकाली आपने बोटी, ये उठाया बोटा, तो उसका जान जाएगी कि वो हिसाब लगाएगा।
ताजिर हो गई 200 की बूटी तो कम से कम वो तो 250 वाली लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने आपने लिया उससे उजरत उसी को गनीमत जाने, उसी होता है इतना पैसा होता है। गरीब आदमी नहीं होते ये, आमतौर पे गरीब नहीं तो गरीब लगते होते नहीं है, जो मेरा गुमान गालिब है। नफा काफी बचता होगा तो फिर भी बस ये हिर्स 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 हल में मजीद और मिले और मिले और मिले। कहाँ का हलाल कहाँ का हराम जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए। अपनी नस्लों की दीनी तरबियत के लिए तालीम कुरान के इदारे आम करें। टेलीथॉन में हिस्सा मिलाकर दावत इस्लामी का साथ दें। 2025 टेलीथॉन के लिए फी यूनिट 10,000 रुपए रखे गए। आप भी अपने अतियात दावत इस्लामी को दीजिए, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है, सदका बलाओं को टालता है, सदका बुरी मौत से बचा लेता है, वो सदका दुनिया और आखिरत में बेशुमार बरकतों के हुसूल का जरिया है। अपने अतिया दावत इस्लामी को दीजिए। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर खाही, भलाई और आमदनी बढ़ाने के जायज और महफूज काम में लगाया जा सकता है, ताकि बढ़ते इखराजात को पूरा किया जा सके। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत। आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेगमेंट है नगमात अत्तार। काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, फिर बक़ीअ ग़रक़द में दफन कोई कर जाता। तो दश्ते तैबा में भटकने से क्या मुराद है? भटकना से राह भूल जाना। तो यूं मैं मदीने शरीफ के सहरा में रास्ता भूल जाता और यूं भटकता फिरता और यहाँ तक कि मैं फौत हो जाता और कोई उठा के मुझे बक़ीअ ग़रक़द में दफन कर देता। अमीरे अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं हर रोज़ सहरी के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता और अर्ज़ करता, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशनसीबी है कि आज बुज़ुर्गों का मदनी चैनल का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं अमीरे अहले सुन्नत और बुज़ुर्ग। मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे और इंशाअल्लाह उल करीम बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने की सादत मिलेगी अमीरे अहले सुन्नत से। मुख्तलिफ अंदाज से हमारे बुज़ुर्ग इस्लामी भाई कुछ पूछेंगे भी, कुछ अपनी भी मालूमात का इजहार करेंगे और इसके ज़रिए इंशाअल्लाह उल करीम हम अमीर अहले सुन्नत से भी मदनी फूल हासिल करने की सादत हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेगमेंट है नगमात अत्तार। मदनी चैनल के नाजरीन और हाजरीन, आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नगमात अत्तार में हम अमीर अहले सुन्नत के तहरीर करदा
मजमुआ वसाइल बख्शिश से चंद अशार शामिल करेंगे इसमें, और उन अशार को सुनकर इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से उनकी वजाहत भी तलब करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अशार की तरफ। काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, फिर बक़ीअ ग़रक़द में दफन कोई कर जाता। काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, फिर बक़ीअ ग़रक़द में दफन कोई कर जाता। काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, मैं भटक के मर जाता, फिर बक़ीअ ग़रक़द में दफन कोई कर जाता, फिर बक़ीअ ग़रक़द में दफन कोई कर जाता। यहाँ पर जो भटकने का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जनरली देखा जाता है कि भटकना जो है ये कोई राह भूल जाता है, कोई परेशान हाल हो जाता है, तो उस वक्त ये मनफी तौर पर अमूमन इस्तेमाल किया जाता है भटकना। लेकिन आपने यहाँ पर इस शेर में इसको भटकने के लफ्ज़ को इस तरह शामिल किया कि काश दश्त तैबा में भटक के मर जाता। तो दश्त तैबा में भटकने से क्या मुराद है? भटकना से राह गुम हो जाना, जैसे वो गुमराह को भी बोलते हैं भटका हुआ है, राह भूल जाना। तो यूँ मैं मदीने शरीफ के सहरा में रास्ता भूल जाता और यूँ भटकता फिरता, और यहाँ तक कि मैं फौत हो जाता और कोई उठा के मुझे बक़ीअ ग़रक़द में दफन कर देता। पुराना नाम यही है बक़ीउल ग़रक़द, या असल नाम यही है बक़ीउल ग़रक़द, क्योंकि वहाँ उसमें ग़रक़द के दरख्त थे उस वक्त, तो इसलिए इसका नाम बक़ीउल ग़रक़द पड़ा। अब हम इसको जन्नतुल बक़ी कहते हैं। हदीसों में यह नाम नहीं है, जो बात बात पे बुखारी में दिखा जन्नतुल बक़ी, वो भी बोलते होंगे, तो हदीसों में दिखा कहा जन्नतुल बक़ी। आशिकों ने रखा हुआ है नाम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से आम है। और आज मैंने पर्दा उठाया, लाखों को नहीं पता होगा इसकी हिकमत, जन्नतुल बक़ी आशिकों ने रखा नाम। सबको बोलना पड़ रहा है। अगर ये बक़ीउल ग़रक़द जो पुराना नाम बोलेंगे तो लोग समझेंगे ही नहीं, मुखालफत करेंगे, ये क्या हुआ, तुमने नाम बदल दिया, हालांकि असली नाम वही है। मदीना पाक का ये कब्रिस्तान और रूए ज़मीन के सारे कब्रिस्तानों से अफजल कब्रिस्तान है, सरकार के कदमों में ही है। बाबे जिब्रील, बाबे बक़ी, ये सब कदमों की तरफ है। जो मदीने गए उनको पता होगा, मस्जिद में गौर करेंगे तो कदमों में। अल्लाह करे हमें आका के वाकई कदमों में क्या बात जगह मिल जाए। हुज़ूर क्या हम भी कदमों में? यूँ तो हम पाकिस्तान भी कदमों में। क्या बात। हाँ कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार और अनवार में जो आराम फरमा है, तो आपके मुबारक कदम जो हैं ये इसकी सीध में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गालिबन बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब इस तरफ आ रहे हैं। माशाअल्लाह।
और काबे शरीफ का दरवाज़ा जो हमारा, जो हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे सामने काबे का दरवाज़ा है, बाबुल काबा। तो दो दो रहमत के असबाब हमको हासिल हैं। और आप आशिकान रसूल अगर दुनिया में तलाश करेंगे ना, इश्क रसूल की कसरत, तो आपको पाक व हिंद में मिलेगी। क्या हमने जगह जगह के मुसलमान देखे, समझे, लेकिन जो अदब, जो इश्क ज़्यादा, ये नहीं कि दुनिया खाली है, ज़्यादा पाक व हिंद में मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर, इस कलाम की कोई माजी की याद भी हो कि ये कलाम कब लिखा था? ये शायद लिखा तो मैंने सफ़र मदीना में हो। अब यार बस मैं पहले उस वक्त तो तारीख लिखता था, लेकिन फिर जब वो प्रिंट होती थी तो तारीख कंपोजिंग में लेते नहीं थे, मैं कुछ बोलता नहीं था। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि यार तारीख की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आइंदा आप जैसे लोग सवाल करेंगे ना, तो लेकिन अब वो क्या करें। अब तो खैर इसका एहतमाम है तारीखों का, एक कुछ अरसे से है कि हर कलाम में तारीख लिखते हैं, ताकि बाद वालों को भी इसमें थोड़ा इल्म का शौक़ होता है ना, मालूमात का, तो उनके लिए भी ये मुफीद हो। लेकिन अब तो जो होना था हो गया। कहाँ लिखा ये भी याद नहीं है और कब लिखा ये भी याद नहीं है, लेकिन है बहुत पुराना। मुझे याद ये पड़ता है कि मदीने से वापसी पर ये कलाम हमारे माहौल में पढ़ा जाता था कि जब काफिला मदीने से वापस आता था ना, तो ये बड़ा इसमें एक सोज भी और रिक्कत मिलती थी। हो सकता है ये ऐसे मौके पर लिखा हो, है ना, एक हसरत है ना, काश में इन्हें आया क्यों, भटक के मर जाता वहीं, हो सकता है इस तरफ। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। या खुदा मुबल्लिग सुन्नतों का होता काश, सुन्नतों का होता काश, तेरे दीन की खिदमत कुछ जहां में कर जाता। खुदा मुबल्लिग में सुन्नतों का हो जाता, सुन्नतों का हो जाता, तेरे दीन की खिदमत इस जहां में कर जाता। अमीर सुन्नत, इसमें आपने आरजू फरमाई कि काश मुबल्लिग होता और दीन की खिदमत करता। माशाल्लाह हम और सारी दुनिया देख रही है कि आप रोज़ाना, आपकी रोज़मर्रा आपकी तो शब व रोज़ दीन के कामों में और मुबल्लिग काश ऐसा होता के तौर पर आपके गुजर रहे हैं। तो आखिर इस दुआ में और इस आरजू में आपकी क्या नीयत, कुछ आपको याद है? तो मैं मुबल्लिग कहाँ हूँ? अल्लाह, मैं दीन की खिदमत कहाँ कर रहा हूँ। एक बार वो रमज़ान के महीने में गालिबन बहुत सारे सहाफ़ी आए थे फैज़ान मदीना में, तो मैं भी बैठा होता इनके साथ। तो कोई मेरी इन लोगों ने कोई तारीफ़ की किसी ने, मैंने कहा मैंने तो भाई अभी काम शुरू ही नहीं किया। तो चौंक गया कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने वजाहत की, मैंने कहा काम हुआ जो रब की बारगाह में कबूल हो चुका हो अल्लाह। तो इन मानो कर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं हो कि काम कबूल भी हुआ या नहीं, तो इन मानो कर मैंने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है, ये मैंने वजाहत की थी। तो वाकई कबूल हुआ या नहीं, हम वाकई उस तरह के मुबल्लिग हैं जो बारगाह खुदावंदी में मकबूल होते हैं। तो ये भी, और वैसे भी एक आजिज़ी करना भी चाहिए, अच्छा काम है कि जैसे कोई नेक आदमी हो, पाँचों टाइम नमाजी, तहज्जुद गुजार, पूरा हो नेकियों में, फिर भी वो कभी नहीं कहेगा कि मैं नेक हूँ, मैं वो गुनाहगार आदमी हूँ।
यही कहेगा। तो इसको यूं थोड़ी बोलेंगे झूठ बोलता है, गुनाहगार कहाँ है, गुनाह करते किसी ने देखा ही नहीं इसको, लेकिन वो गुनाहगार ही कहेगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं बारगाह रिसालत में या बारगाह खुदाबंदी में, गुनाह रज़ा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाख से हैं सिवा, मगर ये अफ़ू, तेरे अफ़ू का ना हिसाब है ना शुमार है। अफ़ू माने माफ़ करने वाला और अफ़ू माने मुआफ़ी। तो गुनाहों का तो शुमार नहीं कोई, लाखों से बढ़कर भी अगरचे गुनाह किए, लेकिन तेरे करम तो बेशुमार हैं। तो इस तरह ये आजिज़ी की आला हज़रत तो वलीउल्लाह थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो नेक थे, वो नेक गर थे, नेकों नेक बनाते थे लोगों को। तो ये मतलब हमारे बुज़ुर्गों को पीछे भी देखेंगे आगे भी, तो ये इस तरह की वो हैं, मतलब आजिज़ी के अक़वाल मिलेंगे अपने को। तो आजिज़ी करनी भी चाहिए। और मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, आजिज़ी के लिए झूठ बोलना इबादत है। यही झूठ है, यही झूठ है ना कि मैं गुनाहगार हूँ, अगरचे वो नेक है लेकिन वो बोल रहा मैं गुनाहगार हूँ। तो यूँ मतलब देखा जाए तो हकीकत से अलग है इसकी बात, लेकिन वो बतौर आजिज़ी कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ। तो ये सवाब का काम है, जबकि अच्छी नीयत से कहेगा। अब लोगों पर अपनी आजिज़ी के धाके बिठाने के लिए कि ये फिर एक फूल और बढ़ेगा उसका ना, कि यार इतना नेक आदमी हो, कितनी आजिज़ी करता है, और हम खुश होते रहें और इसलिए लोगों को बोलते रहें कि मैं तो गुनाहगार हूँ। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत उस वक्त संभाल नहीं होती है। कोई तारीफ़ करेगा तो बंदा तो आमतौर पर फूल ही जाता है जनरली, अल्लाह जिसको बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़ाहिदीन दुनिया भी रश्क करते आसी पर, ज़ाहिदीन दुनिया भी रश्क करते आसी पर, मुस्तफा के कदमों में दफन हो अगर जाता, ज़ाहिदीने दुनिया भी रश्क करते आसी पर, रश्क करते आसी पर, मुस्तफ़ा के कदमों में दफन हो अगर जाता, मुस्तफ़ा के कदमों में दफन हो अगर जाता। अमीर अल-सुन्नत, इस शेर में आप फरमा रहे हैं मदीने पाक में दफन होने के हवाले से, तो मदीने पाक में दफन होने की ऐसी कौन सी फजीलत है कि जिस पर जो जाहिदीन हैं, इबादत गुजार हैं, नेक बंदे हैं, वो भी उस पर गुनाहगार जो है वो उससे बाजी ले जाएगा? जाहिदीन, जाहिद की जमा है, जाहिद का मानत जो दुनिया में बेरग़बत हो, दुनिया से दिलचस्पी ना रखता हो, तो ये अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं। तो अगर मुझे जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए तो इस तरह के लोग जो जाहिदीन हैं, नेक बंदे, अल्लाह वाले हैं, वो भी मेरे मुक़द्दर पर रश्क करेंगे कि इसको जगह मिली तो कहाँ मिली। और ये तो बिल्कुल मुशाहिदा है इसका कि जो भी मदीना शरीफ में दफन होता है जन्नतुल बकी में, लोग उससे अच्छी बातें करते हैं उसके बारे में, यार नसीबदार है, यार बड़ा खुश नसीब है, बकी मिल गई उसको, जन्नतुल बकी में जगह मिल गई। तो ये असल उस जन्नतुल बकी एक तो दुनिया का सबसे आला कब्रिस्तान, अफजल कब्रिस्तान के सरकार के कदमों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क़यामत में जब हश्र माने उठना, तो जब ये हश्र होगा तो उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार पुरनवार से सबसे पहले निकलेंगे।
कब्र अनवर से, और सीधी तरफ सीधे हाथ पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हाथ पर सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। और इस तरह ये बाहर तशरीफ़ लाएंगे, और जन्नतुल वकी वाले इनके पीछे, कब्रिस्तान वाले ये सरकार के पीछे होंगे। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में हश्र होता रहेगा, उठते रहेंगे, और यूँ मतलब ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से आएंगे कि पहला खलीफा सीधे हाथ पर, दूसरा खलीफा दूसरे हाथ पर, और पीछे अहले बकी, और मैशर में इस शान से मतलब जुलूस होगा। आप लोग मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा लेना, इंशाअल्लाह। नात कौन है ना हमारे, इंशाअल्लाह। बल्कि आपने तो लिखा है ना कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का जो आपका मक्ता है ना कि हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, मेरे बांधते तो एक काश है, काश क्या ऐसा हो जाए। जो कलाम पढ़ा दिया था कि काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता, इसका भी बक्ता बड़ा खूब है। उनका आ गया हश्र में जिधर जाता शोर था ये हर जानिबे, हश्र में जिधर जाता ये भी उनका हश्र में जिधर जाता शोर था ये हर जानिबे, हश्र में जिधर जाता। इसमें हुजूर ये अर्ज करना है कि ये जो अशार इस तरह के ख्यालात और तसव्वुरात अगर इसमें बयान हो। अब ये कि जैसे कि मेरा ये कि दुनिया में मैंने ये देखा, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदी से नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। अब अल्लाह करे मेरे हक में नेमत साबित हो, ये इम्तिहान तो है, मतलब कि साहिबा जमा हो जाते हैं, ठीक है, कहीं जाऊँ तो। और तो मैं मतलब वो एक तखय्युल बना कि अब दुनिया में तो ये देख लिया। पहले ये होता था जैसे कि ऐसे ख्याल, मतलब कि पता नहीं जनाजे में मेरे कौन होगा, कितने होंगे, समझे। तो फिर आहिस्ता 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 जब ये दावत इस्लामी हो रही है, यार मेरे जीते जी इतने सारे हैं, इतने सारे तो जनाजे में भी नहीं होते लोगों के,
देख यूँ मतलब तो यूँ मेरा हुस्न जन बंधा कि सरकार के करम से क़यामत में भी अल्लाह मुझे यही सिला देगा कि जब मैं जाऊंगा तो लोग मतलब बोलेंगे उनका उन्हें आका का ये आका का गुलाम आ गया, वो नहीं वो अत्तार आका का गुलाम ये आया हुआ है, तो यूँ लोग देखेंगे उनका गया उनका आ गया तार, उनका आ गया तार, उनका आ गया तार। शोर था ये हर जानिब हश्र में जिधर जाता, शोर था ये हर जानिब हश्र में जिधर जाता। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये सेगमेंट जो है कि मुहावरे का क्या मतलब है। अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। सोता रहा, गफलत में मुब्तला रहा, हत्ता कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब वो अफसोस कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो शख्स जैसा अमल करता है उसको वैसा ही उसका नतीजा मिलेगा। ये असल एक हदीस पाक का हिस्सा है, कमा तदीन तुदान। डूबते को तिनके का सहारा, न जो हमें सहारा दे वो तिनका बन जाए, मतलब शेतीर हो या पहाड़ हो गया। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे